Hello friends, today in this video we are going to discuss about transverse section of seminiferous tubule. So in this diagram, as you see that this is the grooving spermatogonia. The very first cell is the spermatogonia. It is lay on the basement or basal lamina. Spermatogonium furtherly divide and reach into the primary spermatocyte. Primary spermatocyte is converted into secondary spermatocyte, and this secondary spermatocyte is converted into round spermatid. And after the process of the sperm formation, this round spermatid is completely converted into specific structure of the sperm. Okay, chalo. The center one cell which is showing with the triangular nucleus, that is a Sertoli cell, or that Sertoli cell is also known as the sustentacular cell, which हम लोगों को ऐसा कुछ कुछ दिखाई दे रहा है कि हम लोग बीच में सेंटर में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सर्टोली सेल और उसके आजू बाजू में ग्रोविंग स्पर्म है वो अटैच है. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो सर्टोली सेल है देयर मेन फंक्शन इज़ टू फॉर्म अ बैरियर between the sperm and the blood which is flowing within the seminiferous tubule. Okay, so this is the whole complete diagram. This is showing the blood capillary. In between this seminiferous tubule there is a presence of the cell, and that is known as the Leydig cell or interstitial cell. Their main function is to secrete the hormones, that is the testosterone, though it is present in between the we can say the tubules, seminiferous tubules. So for that it is known as the interstitial cell. Due to the secretion of this testosterone, it mainly develop or responsible for the development of male reproductive structure as well as for the secondary sexual characters in the male. Okay, this is the next diagram that we have to visit. Okay, in this one it is showing a beautifully the present or the center cell. It is a Sertoli cell which is having a prominent nucleus, and around this Sertoli cell the whole other spermatogonia which is growing, it is quietly अटैच और फिक्स्ड इट विद द सर्टोली सेल, जिसकी हेल्प से ये सर्टोली सेल और नर्व सेल और सस्टेंटिकुलर सेल है, इट गिव्स नरिशमेंट टू द ग्रूविंग स्पर्म. ओके, ये कंप्लीट इसका डायग्राम है. ये कुछ ऐसे दिखते हैं, राइट. चलो अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाती हूँ कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है दैट इज़ अकर इन द दिस प्रोसेस इज अकर इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और ये जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू है इट इज़ कंटिन्यूसली डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, and it is give rise into the cell, and that cells are known as a sperm. Okay, so what are the main function of this Sertoli cell or nerve cell or sustentacular cell? So the very first function of the Sertoli cell, it gives the nourishment to the growing sperm. The second one is it release inhibin which check the FSH activity. मतलब जब इनफ अमाउंट में फॉलिकल मतलब स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है, यहाँ पे फॉलिकल का मतलब हम लोग स्पर्म लेंगे, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ओवरी तो वहाँ पे फॉलिकल का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट ओवेरियन फॉलिकल्स और द एग. सो यहाँ पे इनहिबिन का सिक्रेशन भी करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली अगर इनफ स्पर्म का सिक्रेशन और फॉर्मेशन हो गया है तो एफएसएच के सिक्रेशन को वो सप्रेस करेंगे. द थर्ड फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स इज़ टू रिलीज एबीपी मीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. भाई एबीजी और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? एक्चुअली ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, जब
उसका सिक्रेशन होगा, सो इट इज़ डायरेक्टली मिक्स इनटू द ब्लड, एंड द ब्लड विच कंटेन द testosterone hormones, it is circulate into our blood, and it is going to provide with or it is going to provide to each and every part or a cell of our body. So यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा बताया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन इट मेनली डेवलप सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल. सो यहाँ पे मस्कुलाइन बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ हेयर, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टाच, बियर्ड, एंड यहाँ पे वो एडम्स एप्पल मतलब वोकल कॉर्ड है वो ज़्यादा डेवलप होगा, राइट. तो ये सभी फीचर्स है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही है. तो उससे क्या होगा कि ये जो टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करने के लिए जो सेल की परमेबिलिटी होती है टुवर्ड दिस हॉर्मोन्स, तो वो इंक्रीज़ करने के लिए क्या चाहिए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए. जिससे क्या होगा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल रिलीज़ करेंगे. ये एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो भी सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे उसके साथ तुरंत ही ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करेगा, अपना अटैचमेंट फाइंड आउट करेगा, या फिर वो सेल इजीली टेस्टोस्टेरोन को एब्जॉर्ब करेंगे. और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हम लोगों ने जो ये डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का, तो वो अलग अलग पार्ट ऑफ आवर बॉडी है वो सेल अपना डेवलपमेंट है वो शुरू करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, दूसरा है इट रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर. भाई मुलेरियन फैक्टर क्या है पहले ये समझते हैं. मुलेरियन करके एक डक्ट है विच इज़ डेवलप इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके, तो ये मुलेरियन डक्ट है उसको हम लोग पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में डेवलप होती है. फीमेल में क्या होता है कि ये जो पैरामुलेरियन और पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट है वो आगे जाके फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना फॉर्म करता है. पर मेल के अंदर ये पैरा नेफ्रिक जो डक्ट है उसके डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन प्रोसीजर होती है उसमें मेल एम्ब्रियो के अंदर ये जो इन्फ्लुएंस है मुलेरियन डक्ट फॉर्मेशन का, ये इन्फ्लुएंस it is going to be degenerate due to the effect of AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर. और ये एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज कौन करता है, सर्टोली सेल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंटी मुलेरियन फैक्टर सर्टोली सेल्स से रिलीज़ होने की वजह से ये मुलेरियन डक्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती है वो आगे जाके डेवलप नहीं होंगी, और ये सिर्फ फीमेल के अंदर ही डेवलप होगी, क्योंकि फीमेल के अंदर ऐसा कोई भी एंटी मुलेरियन फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, चलो, ये जो एंटी मुलेरियन फैक्टर है उसका दूसरा नाम मतलब इसको अगर हम लोग बात करें तो ये सेक्सुअल डिफरेंशिएशन मतलब बेबी गर्ल और बॉय के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कह सकते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में मुलेरियन इन्फ्लुएंस फैक्टर, राइट. चलो, मुलेरियन इन्फ्लुएंस फैक्टर का अपोजिट है AMF. ओके, चलो, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल इज एक्ट एज द ब्लड टेस्टिस बैरियर. उसका मतलब ये है, मैंने जो डायग्राम में बताया हम लोगों ने वहाँ पे क्लियरली देखा कि यहाँ पे देखो जो ग्रोइंग स्पर्म होते हैं उसके बीच में ये सर्टोली सेल है. ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास ब्लड का फ्लो आता है, तो ये ब्लड का फ्लो है वो डायरेक्टली ग्रोइंग स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्पर्म है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे. और या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ब्लड के अंदर जो स्पर्म एंटीबॉडी है वो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते ग्रोइंग स्पर्म को, राइट.
So we can say it is serving as a barrier between the sperm and the blood, जिसकी वजह से डायरेक्टली ब्लड का कांटेक्ट स्पर्म के साथ नहीं होगा। तो ब्लड के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी है कि जो स्पर्म को और स्पर्म के लिए जो डेंजरस हो सकती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बैरियर यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहेगी, राइट। चलो, नेक्स्ट फंक्शन of the Sertoli cell is it absorb the part being shed by developing spermatozoa। मतलब जो डेवलपिंग स्पर्म है जो भी सेल डेब्रिस वगैरह रिलीज़ करता है उसको वो एब्जॉर्ब करने का फंक्शन कर रहा है। तो मेनली वी कैन से कि यहाँ पे वो कम्प्लीटली जो मीडियम है उसको हाइजीनिक रखने का काम करता है। चलो, तो एक बार फिर से सर्टोली सेल के फंक्शन को हम लोग रिपीट कर ले। सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल है क्योंकि वो ग्रोविंग स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं, और दूसरा उसका नाम है सस्टेंटिकुलर सेल। ओके, चलो, वेरी फर्स्ट फंक्शन कि भाई नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इट रिलीज इनहिबिन मतलब वो एफएसएच की एक्टिविटी को क्या करता है, सप्रेस करता है। देन एबीपी मतलब वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज़ करता है, जिससे बॉडी के अफेक्टेड पार्ट है इसकी वो सेल की परमिएबिलिटी टुवार्ड द टेस्टोस्टेरॉन है वो इंक्रीज हो जाती है। वो एंटी मुलेरियन फैक्टर को रिलीज़ करते हैं जिससे मुलेरियन डक का डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल डिफ्रेंशिएशन। ओके, द नेक्स्ट वन फंक्शन इज यहाँ पे इट इज़ एक्ट एज द ब्लड टेस्टिस बैरियर, सो इट प्रिवेंट the passing of the sperm or the contact of the sperm with the blood. Okay, and it absorb the parts which is being shedded by the growing sperm. Okay, outside the seminiferous tubule, as you know, there is a presence of the leading cell. leading नाम ने के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका नाम है। और दूसरा इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पे देयर फंक्शन इज टू secrete male sex hormone that is testosterone. As you know, it is responsible for the male reproductive structure and also for secondary sexual characters in male. So testosterone also act in the process of spermatogenesis, मतलब sperm formation की process को वो activate करता है। चलो, other than that it also having a certain immunocompetent cells which is present with the leading cell। यहाँ पे लीडिंग सेल के साथ ये इम्यूनो कम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो मेनली इन्फेक्शन वगैरह से या फिर हार्मफुल पैथोजन से उसका क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। चलो, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस। So it is known as the external genitalia of the male, and it is a main part of the copulatory organ, we can say, through which the semen is deposited into the vagina. This process is known as the insemination. Okay, it is surrounded by the muscular tissue. Okay, so mainly the muscles layer which is of two type. One is the corpora cavernosa. This corpora cavernosa है, it is lie in the dorsolateral part of the penis, and दूसरा है corpora spongiosum. Corpora spongiosum है, it is surrounded the penile urethra. So muscular part दो है, corpora cavernosa and corpora spongiosum. कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो डोर्सोलैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और स्पॉन्जियोसम कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, इट्स सराउंडेड द पेनाइल यूरेथ्रा। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस पेनिस। सो दिस इज द सेप्टम between the penis which dissect the portion in between. This is the corpora cavernosa. Okay, and beneath the one penile urethra के अराउंड में है, that is a corpora spongiosum. It is a spongy and made up of erectile tissue, so it is very sensitive toward touch. Around this corpora cavernosa there is a hard tough layer, that is a tunica albuginea, and this is the septum of penis, and surround the corpora spongiosum there is a presence of the nerve ending and blood vessels, and the center
ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम इट इज़ अ पेनाइल यूरेथ्रा. सो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि पेनाइल यूरेथ्रा का सराउंडिंग है वो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से है. Corpora spongiosum is very sensitive due to the presence of the spongy rectal tissues and the many nerve fibers ending and blood vessels. Okay, so this is the whole structure of it. Okay, so there is a presence of the glands of Tyson. This glands of Tyson है, it is present around the glans penis or between the foreskin or a prepuce. और यहाँ पे मेनली their function, मतलब ये जो glands of Tyson है वो मेनली प्रिप्यूटियल ग्लैंड है जो रिलीज़ करती है स्मिग्मा. और ये जो स्मिग्मा है जिसकी वजह से इट प्रोवाइड, ये एक वाइटिश सिक्रीशन है जिसकी वजह से इट गिव अ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट. चलो see that one. Corpora spongiosum, as you know, it is extend to form a glans penis and which is very sensitive structure, and this part is retractile fold of skin that is called as the prepuce or foreskin. Below the foreskin there is a presence of odoriferous gland which secrete the smegma, and this smegma it is a whitish secretion, and this secretion of the gland plus sperm that is called as the semen, or you can say it is a seminal plasma, right? Chalo, let us move with this one. We have to discuss last over here. In some religion this prepuce is surgically removed out, and this process is called as the circumcision. Corpora spongiosum has many intercellular space. At the time of emotion it is filled with the blood, so it become a hard and erect, and this यहाँ पे ये जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड भरने की वजह से इट बिकम अ इरेक्टाइल, सो दैट इज पेनिस इज erect due to the presence of hydroskeleton we can mention. Actually here you have to mention each points within your notes.